for herself. Yeah, women are a queen in any platform. Yeah, If you yeah, put right, right. anywhere, any place, she always perform They, yeah, they, well, best. very well, very well. Yeah, best. They are good. We are a good performer actually. Yeah, we can And perform Deepika? anything well. I you told Tarun that one day he came and you told him that whenever freedom comes, it comes with responsibility. The Yeah, line right. is very, very, very nice, and I write it in my fair copy. Thank you, thank you, I thank like you. that. I like that. Yes, it's come always come with a responsibility. You motivate us actually. No way. I'm not like the type of person and No, 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 personality no. to motivate the people. I really I'm like that. I'm I am on the learning process, Deepika. I'm too learning process like you. Like And each and we every But time like I ma'am, keep on learning. yeah, ma'am, I agree with you. We are in this it. platform. We are the same. But whenever we see you, we always feel you inspired us because you My are doing goodness. very Okay, good things. okay. So I agree with Deepika. Sir Please don't make has feel given make me some. Good embarrassed. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ladies. Roshni, good evening. Good अच्छा evening राजवीर has का joined. But I'm very bad in study, huh? We don't think so. You are bad in study. Only sir can judge us how much we are poor in study. Okay, Maybe guys. we'll see. Let me ask दीपिका. दीपिका, पिछली क्लास में कोई वर्ब दी थी क्या? Verb, yes, sir. It's What was the last. last verb? The last verb was guess. Get, Guess, guess. guess. अनुमान Okay. लगाना. हम्म। अभी मैं कुछ वर्ब्स चेक करता हूँ, तो बताना ये मिली है कि नहीं. Okay, sir. मुस्कुराना, Smile. No, sir. अ, बहुत देर से शिवांग शांत है, अब वो बोलेगा. सुन लिया होगा शिवांग, अब पूछो आगे का सवाल. Namrata Didi, what should be the verb for muskurana? Shivang, the verb for muskurana should be smile. सेकेंड फॉर्म पूछ रहे हो? Deepika, Yes. Deepika, what should be the second form of smile? The second form of a smile should be smiled. Renuka ji, what should be the third form of a smile? The third form of smile should be smiled. Shiva, Roshni, what is the verb? What is the verb What of should be the verb? the verb? What should be the verb for hasna? Come again, Renuji. What should be the verb for hasna? The verb for hasna should be smile. रोशनी, क्या तुमने अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल नहीं किया है? सर कर लिया. तो फिर तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? इज इट नॉट विजिबल? सब ब्लर टाइप का आ रहा है. आपको पता है, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जितना भी चाहो एडजस्ट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो.
Renuka ji, please ask the question again to Roshni. Roshni, what should be the verb for hasna? The verb for hasna should be smile. Okay, now you can ask the next question to Shivang. Shivang, what should be the spelling of? नहीं, तुम यही पूछो जो रेणुका जी ने तुमसे पूछा. Okay, sir. Shivang, what should be the verb for hasna? The verb for hasna should be laugh. Deepika Didi, what should be the second form of laugh? The second form of laugh should be laughed. Namrata, what should be the third form of laugh? Deepika, the third form of love should be loved. Roshni, Renuka ji, what, sir, what should I ask? Same No, question. don't ask anything. बल्कि ये पूछ लो अगर याद हो तो, क्या आपने ये लिख ली है? Renuka ji, have you written this? Yes, Namrita, I have written this. I have already Should I? written this. Okay. Shivang, have you written this? Yes, Renuka Didi, I have written this. Deepika Didi, have you written this? Yes, Shivang, I have written that. Roshni, have you written that? Yes, I have written that. Namrata Didi, have you written that? Yes, Roshni, I have written that. Okay, I'm asking the next question to all of you. What should be the noun of smile? The noun of smile should be laughing. Smile. Smile is noun also. अगला सवाल तुम किसी और से पूछ लो. Deepika Didi, what should be the Hindi meaning of smile? The Hindi meaning of a smile should be muskurana. हाँ, अब दीपिका तुम यही सवाल Muskan. किसी और से पूछो. Renuka ji, what should be the Hindi meaning of smile? Deepika, the Hindi meaning of smile should be muskurana. Namrata, what should be the Hindi meaning of smile? Renuka ji, the Hindi meaning of smile should be muskurana. Roshni, what should be the Hindi meaning of smile? The Hindi meaning of smile should be muskurana. शिवांग से पूछो. Shivang, what should be the Hindi meaning of muskurana? Sorry, smile. मुस्कुराना का हिंदी मीनिंग. Shivang, The what should be Hindi, the Hindi meaning of smile? the Hindi meaning of smile should be Muskan. मुस्कुराहट, मुस्कान.
मतलब ये एक डाउट हमें क्लियर हो गया कि अभी तक आप लोग संज्ञा और क्रिया में अंतर नहीं कर पाते हैं दोस्तों। क्रिया की पहचान बताई कभी इस बैच में बच्चों किसी को? बताई हो तो हमें बताओ। किसी हिंदी शब्द को कैसे पहचानोगे कि वो क्रिया है? सर ना आए लास्ट में। आना चाहिए। हाँ, तो नाउन में ना कैसे आएगा? आप लोग गलत उत्तर दे रहे थे ना। यस सर। जैसे बॉय, लड़का, नाउन है ना, तो लड़का में ना तो नहीं आता है, लड़की। ओके, अब एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन, आमतौर पर उसके उत्तर में भी बच्चे जवाब सही नहीं दे पाते। व्हाट शुड बी द नाउन ऑफ लाफ? The noun of laugh should be laughing. और आगे बढ़ो, बाकी सभी से पूरा राउंड खेलते हैं। Deepika Didi, what should be the noun for laugh? The noun for laugh should be laugh. Renuka ji, what should be the noun for laugh? The noun for the laugh should be laugh. Namrata, what should be the noun for laugh? Renuka ji, the noun uh, for laugh should be laugh. Roshni, what should be the noun for laugh? The noun for laugh should be loud. Deepika Didi. Now, Deepika is rest? Yes, sir. No. Oh, I'm done, Ask sir. Is done. Rajni, you can ask me. sir, what should be the noun for laugh? The noun of laugh should be laughter. लाफ्टर चैनल चल रहे हैं बहुत सारे। और इस बार जरा प्रिपोजिशन का भी हम अच्छा अभ्यास कर ले महिलाओं। चलो हम किससे पूछें जो सही आगे बढ़ा सके। दीपिका, व्हाट शुड बी द नाउन ऑफ लाफ? The noun of laugh should be laughter. Namrata, एक बार हिंदी कर ले क्या? क्योंकि तुम लोग पिछली बार सब में फॉर लगा बैठे थे। वो तो फॉर हम इसके लिए पूछते कि मुस्कुराने के लिए क्रिया कौन सी होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर मुस्कुराना। अब हम पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द नाउन ऑफ लाफ? लाफ की संज्ञा क्या होनी चाहिए? जिसको हिंदी लगे कर लेना। ना, लाफ की संज्ञा क्या होनी चाहिए? uh, Renuka ji, what should be the noun of laugh? Deepika, the noun of laugh should be laughter. रेणुका जी, लाफ की संज्ञा क्या होनी चाहिए? दीपिका, लाफ की संज्ञा लाफ्टर होनी चाहिए। Namrata, what should be the noun of laugh? Renuka ji, the noun of laugh should be laughter. Namrata, लाफ की संज्ञा क्या होनी चाहिए? Laugh की संज्ञा laughter होनी चाहिए. Roshni, what should be the noun for laugh? The noun, sorry, What should be the noun of laugh?
The noun of loss should be laughter. रोशनी, लाफ की संज्ञा क्या होनी चाहिए? Laugh की संज्ञा laughter होनी चाहिए. Shivang, what should be the noun of laughter? The noun of laughter. Sorry. यार तुम 3 का दंड दो. शिवांग, give me 3D. You are sleeping. So there you are. Here you are. और I am Sevang Dubey. अब बाकी सबको 3-3 का दंड, क्योंकि इसने 3 इंग्लिश के सेंटेंस तो बोले, किसी ने उसको कंप्लीट द प्रोसेस नहीं बोला, तो अब बाकी सबको भी 3 का दंड. शुरू करते हैं दीपिका से. देव 3 का दंड. My name is Deepika Shukla. मेरा नाम दीपिका शुक्ला है. I am 38 year old. मैं 38 ईयर की हूँ. I am born and brought up. I was born and brought up in a small town named चचई. मैं एक छोटे से शहर चचई से में पली बढ़ी हूँ. नाम पुकारो किसी का. नम्रता. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है. तो देयर यू आर. अब आए ना तुम लाइन पर. वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है. रेणुका जी. It's not my cup of tea. So shall you In Hindi also. Renuka Okay. ji, complete the process. कंप्लीट Okay, द okay. प्रोसेस नाम का सेंटेंस थोड़ा सा याद रखें दोस्तों. कंप्लीट द Yes, प्रोसेस. yes. ये मेरे बस की बात नहीं है. ये मेरे बस की बात नहीं है. Sir, give me 2 minutes, sir. Actually, I have to recollect. Black and blue. Sir, give me 2 minutes. Give me 2 minutes. So, I will complete my. Okay. Meanwhile, Roshni, you start. Okay. Yeah. Work is worship, कर्म ही पूजा है. He resembles to his papa. वह अपने पापा की तरह दिखता है. I am awake. मैं जाग रही हूँ. सर शिवांग को भी बोलिए. शिवांग, Now I would like to invite शिवांग. शिवांग का पहले हो गया था एक्चुअली, और उसने कंप्लीट नहीं की थी प्रोसेस, और तुम लोगों ने कंप्लीट द प्रोसेस नहीं बोला, इसलिए तुम लोगों को 3-3 कर लगा. तो शिवांग, जो तुमने कोई भी फिर से कोई 3 सेंटेंस ऐसे ही बोल दो. और रेणुका जी सुने कि इनको ज्यादा कुछ अभी मिला नहीं है, लेकिन चीजें जुबान पे आती जा रही. What should I do? मैं क्या करूं? You have spoken out of my mouth. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. Like draws like. चोर चोर मौसेरे भाई. शिवांग, should I erase all? Yes sir, you should erase all. क्या मैं पूरा मिटा दूं? हाँ सर, आप पूरा मिटा दीजिए. मत रहो. दीपिका दीदी, should I erase all? Yes, Sevang, you should erase all. दीपिका दीदी, क्या मैं पूरा मिटा दूं? हाँ सेवांग, आप पूरा मिटा दीजिए. रोशनी, should I erase all? Yes, you should. Sorry. Yes, you should erase all. रोशनी, क्या मैं ये मिटा दूं? ये पूरा मिटा दूं? हाँ, पूरा मिटा दीजिए. नम्रता दीदी, you should erase all. Sorry, Rosni. Should I erase all? Yes, Rosni, you should erase all. Sir, you are Sir, you are mute.
सॉरी सॉरी, ये अच्छा लगा नम्रता कि अभी जो हुआ था इसके पहले सामने से गलत प्रश्न आ रहा है और अपन उत्तर दिए जा रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 100% नहीं है मौजूद। तो ये इट वाज गुड, थैंक यू। रोशनी कम अगेन। नम्रता दीदी, शुड आई इरेज ऑल? यस रोशनी, यू शुड इरेज ऑल। क्या मैं पूरा मिटा दूं? हाँ रोशनी, पूरा मिटा दो। रेणुका जी, शुड आई इरेज ऑल? Yes, Namrata, you should erase all. रेणुका जी, क्या मैं पूरा मिटा दूं? हाँ नम्रता, आप पूरा मिटा दो। दीपिका, दीपिका, should I erase all? Yes, Renuka ji, you should erase all. दीपिका, क्या मैं पूरा मिटा दूं? हाँ रेणुका जी, आप पूरा मिटा दीजिए। दीपिका, तुम नम्रता से पूछा करो और नम्रता रेणुका से, फिर रोशनी को ज्यादा बार सुनने का अवसर अपन दें। लेकिन मिटाने से पहले यहाँ एक चीज रह गई है दोस्तों, इस हमने आधा मिटा के छोड़ दिया। क्वेश्चन क्या बनेगा? What What should be should the व्हाट दीपिका शुड बी बोलना। द दीपिका, what should be the meaning of laughter? किसी से पूछ लो, नाम ले लो। Namrata, what should be the meaning of laughter? दीपिका, द मीनिंग ऑफ लाफ्टर शुड बी हंसना। Namrata, हिंदी मत करो इस बार। रेणुका जी, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ लाफ्टर? Roshni, what should be the meaning of laughter? सॉरी रेणुका जी, आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ लाफ्टर? Okay, Namrata, the meaning of laughter should be हंसी। हंसी या ठहाके लेके हंसना कुछ ऐसा। Yes. Roshni, what should be the meaning of laughter? The meaning of Rosh laughter should be हंसना, हंसी। शिवांग, what should be the meaning of laughter? The meaning of laughter should be हंसी या हास्य। दीपिका दीदी, what should be the meaning of laughter? the meaning of laughter should be हंसी या हास्य। ऑल आर डन दोस्तों। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट। आपको ऐसा लगेगा कि मैं गलती से दोबारा लिखवा रहा हूँ, लेकिन वो गलती से नहीं लिखवा रहा हूँ। हिंदी जरूर रिपीट होगा लेकिन इंग्लिश इसका अलग होगा। दीपिका, ये सवाल
शिवांग से करो, उसको इसका उत्तर पता है। शिवांग, what should be the meaning of होना? नहीं, तुमने गलत प्रश्न किया। नम्रता तुम करो। शिवांग, what should be the verb for होना? नम्रता दीदी, the verb for होना should be remain. सर Remain. हिंदी में नमोदय। Namrata, mute yourself first. The verb for होना should be remain. Deepika didi, what should be the second form of remain? Shivang, the second form of for remain should be remained. Namrata, what should be the third form for remain? दीपिका, यहाँ और लगाना गलत है तुम लोग। ऑफ। यस, ऑफ। Namrata, what should be the third form of remain? दीपिका, the third form of remains should be remained. Remain. रेणुका जी, what should be the verb for remain? Sir, what should I ask? ये सिंपल क्वेश्चन। रेणुका जी, what should be the verb for होना? Namrata, verb, uh, the verb of hona should be remain. दोस्तों, ये आपके लिए नया होगा। आप में से हाथ उठाइए अगर किसी ने कहीं पढ़ा हो या सुना हो तो। हाथ उठा के बस बताइए अगर ये रिमेन आपने कहीं देखा, सुना, पढ़ा। चलो, दीपिका ने देखा, सुना। इसके और मीनिंग लास्ट में रहता है, डिवीजन में लास्ट में रहता है रिमेनिंग पार्ट। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, अभी हम आगे चलकर और देखते हैं। और दोस्तों, मैंने पिछली बार भी बताया था, आज पुनः बताता हूँ। पिछली बार मैंने बी क्रिया 3 बार लिखवाई थी, और चूंकि वो आसान सिंपल नहीं होती तो उसी के ठीक नीचे उसके एक एक एग्जाम्पल लिखवा दिए थे। तो ये एग्जाम्पल आपको कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं लिखना है दोस्तों, वर्ब के ठीक नीचे लिखना है आपको, ताकि जब इस क्रिया के प्रयोग की जरूरत पड़े आपको, तो आप उसको देख सकें कि इसका प्रयोग होता कैसे। अब इस सेंटेंस को दिख रहा है आपको, पढ़ लीजिए, और उसका हिंदी कौन सही बता सकता है वो अनम्यूट करें। Don't worry, it will remain within a second. चिंता मत करो, ये कुछ सेकंड में ठीक, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। काफी हद तक सही है, और कोई प्रयास करे, ये पूरा सही नहीं है। यस सर, चिंता मत करिए, ये कुछ ही सेकेंड्स में हो जाएगा। अब हम इसको एक बार बोल देते तो हैं, कुछ ही समय बचा हुआ है होने के लिए। नहीं, ये बचने के लिए नहीं है, ये होने के लिए है। सुनिएगा, चिंता मत करो, ये 1 सेकंड में हो जाएगा। चिंता मत करो, ये 1 सेकंड में हो जाएगा। अब इसी भाव के साथ, क्योंकि शिवांग पूरे भाव के साथ बोलता है, तो शिवांग से शुरू करते। शिवांग, आप दीपिका दीदी का नाम लेना, दीपिका आप नम्रता का, नम्रता आप रेणु का, और फिर वो रोशनी। शिवांग। Don't worry, it will remain within a second. चिंता मत करो, ये 1 सेकंड में हो जाएगा। दीपिका दीदी। Don't worry, it will remain within a second. चिंता मत करो, ये थोड़े समय में हो जाएगा।
Namrata? डोंट वरी इट विल रिमेन विद इन अ सेकेंड। चिंता मत करो, ये थोड़े समय में हो जाएगा। रेणुका जी? डोंट वरी, डोंट वरी, इट विल रिमेन विद इन अ सेकेंड। चिंता मत करो, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। रोशनी? सॉरी दीपिका, रेणुका जी। ओके, चिंता मत करो, ये तुरंत हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। पर आपने बोला चुटकी में हो जाएगा, तो लाइक वही हो गया ना कि तुरंत हो जाएगा। मैंने बोला था 1 सेकेंड में हो जाएगा, विद इन अ सेकेंड। विद इन अ सेकेंड। डोंट वरी इट विल रिमेन विद इन अ सेकेंड। चिंता मत करो, ये 1 सेकेंड में हो जाएगा। ओके, तुरंत हो जाएगा नहीं आएगा सर यहाँ पे। हो जाएगा, हाँ सही है, इट इज करेक्ट, करेक्ट। ओके, रोशनी? डोंट वरी इट विल रिमेन विथ अ सेकेंड। चिंता मत करो, कुछ ही सॉरी सॉरी और रोशनी। डोंट वरी इट विल रिमेन विथ अ सेकेंड। चिंता मत करो, एक Okay. सेकेंड। Okay. रोशनी। सॉरी सॉरी। डोंट वरी इट विल रिमेन विद इन अ सेकेंड। चिंता मत करो, एक सेकेंड में हो जाएगा। सॉरी और हिंदी। डोंट वरी इट विल रिमेन विद इन अ सेकेंड। चिंता मत करो, एक सेकेंड में हो जाएगा। सॉरी क्या? रोशनी। क्या हिंदी में गलती हो रही है? हाँ। चिंता मत करो, कुछ सेकेंड में हो जाएगा। रोशनी दीदी क्या? चिंता मत करो। ये आगे का पूछ लो बेटा, किसकी बारी है? दीपिका दीदी, what should be the verb for बनना? Shivang, the verb for banna should be remain. Namrata, what should be the verb for banana? दीपिका, द वर्ब फॉर बनना शुड बी रिमेन। रेणुका जी, व्हाट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ बनना और रिमेन? Namrata, the second form of banna should be remained. Roshni, what should be the third form of remain? Roshni? The third form of remain should be remained. ओके, अब एक एग्जांपल आपके सामने आ गया है। इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. It is clearly visible. Okay. So can you translate this sentence? Can anybody translate? Yes, sir. यस सर। It ओके, will आफ्टर यू remain a big दीपिका। It will remain a big problem for you. यह तुम्हारे लिए बड़ी समस्या बनेगी। हाँ, बल्कि अगर हम चालू एक रोजमर्रा की भाषा में बोले तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी दोस्त। ये तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी, ऐसा भाव लेकर आए तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। शिवांग? यार, it will remain a big problem for you.
यार ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी दीपिका दीदी। इट विल रिमेन अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ये तुम्हारे लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। नम्रता। इट विल रिमेन अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। रेणुका जी। You don't know it will remain a big problem for you. Uh, Roshni, कंप्लीट द प्रोसेस। uh, तुमको नहीं पता है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। रोशनी। इट विल रिमेन अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। ऑल आर डन। यस सर, ऑल आर या, डन। इसका पूछना नहीं पूछा बेटा तुमने, भूल गए। शिवांग, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर रहना? द वर्ब फॉर रहना शुड बी रिमेन। नम्रता दीदी, व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ रिमेन? शिवांग, द सेकेंड फॉर्म ऑफ रिमेन शुड बी रिमेन्ड। दीपिका, what should be the third form of remain? Namrata, the third form of remain should be remained. What should I ask her? दीपिका तुम रोशनी से स्पेलिंग बस पूछ लो और समाप्त कर दे। Roshni, what should be the spelling of remain? The spelling of remain should be REMAIN. देयर। अब वहां एक सेंटेंस आप लोगों को दिख ही गया होगा। यहाँ आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि रहना के लिए तो हम लोग बरसों से लिव क्रिया का प्रयोग करते आ रहे हैं, उसमें किस तरह से रहना बताया जाता है और इसमें इस अंतर को एक वाक्य तो अभी हमने लिख दिया, उससे समझिए, और आगे जब हम आपसे सेंटेंस बनवाएंगे तो फिर धीरे धीरे ये क्लियर होगा। और समय आने पर एक ऐसा मोड़ आता है जब बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको, फिर हम उसका उपचार करेंगे, तो डोंट वरी। कैन एनीबडी टेल मी द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? रिमेन सीटेड प्लीज। बैठे रहिए प्लीज। अब यहाँ पे आप लोगों को जैसे उस बच्चे ने लगा दिया, प्लीज को अलग से लगाने की आप लोगों की आदत है, प्लीज से रिक्वेस्ट हो जाती है एक्चुअली। अगर हम यहाँ से प्लीज हटा दें तो हम यहाँ पे केवल शिवांग से बोलेंगे, शिवांग रिमेन सीटेड, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, शिवांग बैठे रहो। लेकिन बाकी लोगों से अगर हमें बोलना है तो फीमेल के चलते हमें सम्मानजनक तरीके से बोलना होगा, ऑल द लेडीज रिमेन सीटेड, बैठे रहिए बैठे रहिए। तो रहिए का भाव इससे आता है अंग्रेजी, दिस इज रिक्वेस्ट। शिवांग उसको बोलना, आगे कुछ लगाना हो आगे पीछे तो लगा सकते हो बेटा, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकल सेंटेंस की आदत है। अबे रिमेन सीटेड, अबे बैठे रहे। नम्रता दीदी, अच्छा, रिमेन सीटेड प्लीज। बैठे रहिए। दीपिका, Remain seated please and keep quiet. अपनी जगह पे बैठे रहिए और चुप रहिए। रोशनी। रिमेन सीटेड प्लीज। बैठे रहिए। रेनू जी। गर्ल्स, रिमेन सीटेड प्लीज। गर्ल्स आप लोग बैठे रहिए प्लीज। ऑल आर डन।
रोशनी या ऑल आर डन? यस Is सर। anybody else? नो सर। अच्छा दोस्तों, अब बताइए, राइटिंग वर्क तो हो गया। आज हमने आपको 5 वर्ब्स लिखवा दी। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बैच? सेकेंड चैप्टर इज गोइंग ऑन इन आवर बैच। थैंक यू। आपके बैच में क्या चल रहा है? सेकेंड चैप्टर हमारे बैच में चल रहा है। एंड अपन ने कितने राउंड खेल लिए थे आज पिछली क्लास में? एक भी नहीं। एक भी नहीं खेला। फॉर्मूला लिखवा दिया है क्या? हाँ, फॉर्मूला आप लोगों की मदद से ही बनाया होगा मैंने। आप एक एक करके बोलते गए होंगे और मैं लिखता गया होंगे। फिर आपसे गलती हुई होगी, फिर सुधारा भी होगा। ठीक है, तो हम पहला राउंड, शायद हमने आई लिख दिया था बोर्ड पे कि पहला राउंड अपन आई से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो हम लोग हमेशा पहला राउंड आई से शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं शिवांग से। शिवांग, तुमसे नहीं करते हैं, तुम एकदम से हो सकता बड़ा सेंटेंस बना दो। तो हम शुरुआत करते हैं दीपिका से। दीपिका, आप नम्रता का नाम पुकारेंगी, नम्रता रेणुका का, रेणुका रोशनी, रोशनी का, फिर रोशनी शिवांग का। और सब्जेक्ट तो सबको आई रखना है दोस्तों, लेकिन क्रिया सबको अलग अलग बदलना पड़ेगी। तो आपको दूसरे को ध्यान से सुनना होगा। अगर आपने दूसरे की क्रिया नहीं सुनी और वो रिपीट कर दी तो आपको 3 का दंड लगेगा। दीपिका, स्टार्ट। आई कैन टीच यू प्रॉपरली। मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। नम्रता। I can wait for you 30 minutes. मैं तुम्हारा 30 मिनट्स। मैं तुम्हारा 30 मिनट तक इंतजार कर सकती हूँ। हाँ, ये अच्छा तुमने प्रयोग किया। दोस्तों, आप में से किसी ने कहीं सुना या पढ़ा हो तो बताइएगा। आजकल टिल जो है प्राचीन काल का हो गया, पुराना हो गया। उसकी जगह शिवम, तुम्हें याद है हमने तुम्हारे बैच में कौन सा प्रपोजिशन बताया था जो फैशन में है आजकल? टिल की जगह नहीं याद है? बाय Until, खूब चल रहा है। while, बी वाई, बाय। while ना सर, यस सर, WHILE। आई कैन वेट फॉर यू I can wait बाय for 6 you o'clock। यहाँ पे by टाइम 6. रखना जरूरी होता है। आई कैन वेट फॉर यू बाय 6 o'clock। मैं 6 बजे तक आपका इंतजार कर सकता हूँ। और रेणुका जिस तरह से हामी भर रही है, मतलब उन्होंने सुना है। राइट। I can wait for you while 6 o'clock. मैं आपका 6 बजे तक इंतजार कर सकती हूँ। रेणुका जी। आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। रोशनी। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। शिवांग। आई कैन हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मौज मस्ती कर सकता हूँ। रोशनी, तुमने बढ़िया सेंटेंस बनाया। रोशनी, तुमने वर्ब कौन सी ली थी? सर स्पीक इंग्लिश बोला था। नहीं, वर्ब कौन सी ली थी? सर वर्ब इंग्लिश। इंग्लिश ली थी, ठीक है। दीपिका, तुमने कौन सी वर्ब ली थी? टीच। टीच ली थी। नम्रता, तुमने वेट। वेट ली थी। रेणुका जी?
हैंडल। हैंडल ली थी। शिवांग आपने? हैंग आउट। रोशनी आपने? हेलो रोशनी, एम आई ऑडिबल टू यू? सर इंग्लिश इंग्लिश स्पीक। इंग्लिश ली थी कि स्पीक ली थी वर्ब? सर इंग्लिश। इंग्लिश ली थी। तो इंग्लिश के 3 फॉर्म बताओ बेटा, अभी हम लिखवा देते हैं इन लोगों को। सॉरी सर स्पीक। हाँ, स्पीक ली थी तो उसके 3 फॉर्म बता दो। सर स्पीक, स्पीक्ड, सर स्पीक, स्पोक, स्पोकन। वाह। बाकी लोग समझ गए होंगे हमारे प्रश्न उत्तर को, कि रोशनी को कंफर्म नहीं था कि उसने क्रिया क्या रखी, सेंटेंस सही बना लिया था। फिर हमने पूरा राउंड खेला तो सबने अपनी अपनी वर्ब बता दी। तब तक रोशनी को क्लियर नहीं था कि उसकी वर्ब कौन सी। वो इंग्लिश को वर्ब मान रही थी। फिर जब हमने इंग्लिश के 3 रूप पूछे, 3 फॉर्म, तब उसको समझ में आया कि यार इंग्लिश के 3 फॉर्म तो होते ही नहीं है, क्योंकि वो वर्ब है ही नहीं, तो कहाँ से बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, राउंड को फिर घुमाते हैं। अब जितनी वर्ब हो गई हैं वो दोबारा नहीं आएंगी, और नई नई वर्ब रखी। दीपिका? आई कैन डेकोरेट पूजा पंडाल, मैं पूजा पंडाल सजा सकती हूँ। नम्रता? I can worship. I can worship all 10 days which are going in Ganesh Chaturthi. मैं पूजा कर सकती हूँ जो 10 दिन गणेश चतुर्थी के चल रहे हैं। रेणुका जी? आई कैन हैव होल केक, मैं पूरा केक खा सकती हूँ। रोशनी? आई कैन स्माइल, मैं मुस्कुरा सकती हूँ। तो मुस्कुराओ। थैंक यू। गुड। एक राउंड और चलाते हैं। दीपिका, अरे सॉरी सॉरी, शिवांग इज नेक्स्ट। I can order pizza and Coca-Cola as well. मैं पिज्जा के साथ कोको कोला ही मंगा सकता हूँ। आप लोग शिवांग के सेंटेंसेस को हमेशा ध्यान से सुनिएगा, और अगर कहीं चॉपिंग की प्रॉब्लम हो तो कम अगेन जरूर बोल सकते हैं आप उसको। वेरी नाइस। एक और राउंड, दीपिका। आई कैन यूटिलाइज माई स्किल प्रॉपरली, मैं अपनी कौशलता को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकती हूँ। कौशल को? कौशल, स्किल मीन्स कौशल। कौशल शब्द हिंदी का सही शब्द है, और उसका नाउन है कुशलता। कुशलता, जी जी। कौशल और कुशलता। रेणुका जी? आई कैन लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन। रोशनी? प्लीज कंप्लीट। थैंक यू शिवांश, थैंक यू। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकती हूँ, नेतृत्व कर सकती हूँ। रोशनी? आई कैन प्ले, मैं खेल सकती हूँ। हाँ, ये बहुत खूबसूरत गलती हुई दोस्तों। आप सुनिएगा, क्या मैंने आपकी क्लास में कभी बताया है कि या पूछा है क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दीपिका बताओ। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो अब तुमसे नहीं पूछेंगे। नम्रता बताओ, सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? सर सकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता
कार्य करता हो, सारी चीज़ें सकारात्मक हों, और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक। ओके। रेणुका जी आप अम, अगर काम कर सकता है तो सकारात्मक है, अगर सब्जेक्ट जो है काम कर सकता है सकारात्मक है, अगर नहीं है तो नकारात्मक है। आई कैन डू। इसकी परिभाषा लिखवाई कि नहीं लिखवाई? चलो लिखवा देते हैं। क्या हो गया दीपिका? नहीं सर, उसके नाम पे ही है, इसलिए लिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस कर्म कर्म के सहित अकर्मक कर्म के अलावा। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का आना जरूरी हो सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का आना जरूरी नहीं हो अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो प्ले जो क्रिया है वो सकर्मक है, उसके साथ एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो व्यक्ति पूछेगा का। ये मैं जबलपुर की भाषा में बोल रहा हूँ, का। आपने बोला आई कैन प्ले, तो बोलेगा का। तो एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा हमें। तो रख दो बेटा रोशनी, एक ऑब्जेक्ट रख दो। I can play game. अच्छा, चलो दोस्तों, रोशनी का थोड़ा सा की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपन एक राउंड खेलते हैं। सब लोग यही क्रिया लेते हैं और मैं शुरू करता हूँ, और सब लोग गेम बदल बदल के रखें। I can play volleyball. चलो एक गेम निकला। अब इसके बाद नंबर आता है दीपिका। दीपिका तुमने इस राउंड में रेणुका जी का नाम लेके नम्रता को छोड़ दिया। सर सामने वो दिख गई होंगी इसलिए बोल दिया होगा। चलो अब दीपिका तुम एक गेम रख के बताओ। ओके। दिस और दैट का यूज कर सकते हैं। आई कैन फेस दिस डिफिकल्टी, मैं इस कठिनाई को फेस कर सकती हूँ। शिवांग। सॉरी दीपिका। सॉरी शिवांग। I can play chess. नम्रता दीदी। आई कैन प्ले क्रिकेट। रेणुका जी, मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ। रेणुका जी। आई कैन प्ले खो खो, मैं खो खो खेल सकती हूँ। दीपिका। रोशनी की बारी है। रोशनी। I can play volleyball. कंप्लीट मैं द वॉलीबॉल खेल प्रोसेस। सकती हूँ। अब मैं अपने आप को भी इस राउंड में रख लेता हूँ, रोशनी के बाद मेरा नंबर। आई कैन प्ले आइस हॉकी, मैं आइस हॉकी खेल सकता हूँ। दीपिका। आई कैन प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेल सकती हूँ। नम्रता। आई कैन प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेल सकती हूँ। रेणुका जी। आई कैन प्ले बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल सकती हूँ। रोशनी। I can play hide and seek. मैं लुका छिपी खेल सकती हूँ। शिवांग इज रेस्ट। वांग। I can play ice water. मैं आइस वाटर खेल सकता हूँ सर। आई कैन प्ले बिलियर्ड्स, मैं बिलियर्ड्स खेल सकता हूँ। दीपिका। आई कैन प्ले गिल्ली डंडा, मैं गिल्ली डंडा खेल सकती हूँ। नम्रता। आई कैन प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ। शिवांग। अरे शिवांग नहीं, रेणुका। रेणुका जी। आई कैन प्ले
बुड्ढी कबड्डी। आई कैन प्ले डेंगा पानी। सॉरी सर। ये रैपिड फायर राउंड है, इसमें ऐसा होता ही है। आपको लगता है कि अरे सरल है, मैं तो ठीक है ठीक आई कैन प्ले टेबल टेनिस। है। रोशनी। कंप्लीट द प्रोसेस रेनू जी। हाँ मैं गुड थैंक यू रोशनी आया। मैं टेबल टेनिस खेल सकती हूँ। आई कैन चिटी, मैं चिटी खेल सकती हूँ। सर उसको क्या बोलते हैं, सर उसका नाम नहीं आ रहा, वो एक पैर से खेलते हैं जो। नहीं, उसको वही बोलो जो तुमने बोला, वो बिल्कुल सही है। उससे किसी को कोई शिकायत शिकवा नहीं। शिकायत है ग्रामर की। तुमने मतलब तुमने क्रिया का कर्म कर दिया, क्रिया कर्म हो गया। तुमने बोला आई कैन चीटी, नहीं, प्ले, आई कैन प्ले चिटी। तो फिर गूगल शायद बेईमान हो गया होगा। आई कैन प्ले चिटी, मैं चिटी खेल सकती हूँ। शिवांग। आई कैन प्ले GTA, मैं GTA खेल सकता हूँ सर। आई कैन प्ले आई कैन प्ले लूडो। Sir, you have spoken out of my mouth. नेक्स्ट दीपिका। आई कैन प्ले पासिंग द पार्सल, मैं पासिंग द पार्सल खेल सकती हूँ। नम्रता। I can play jump. I can play wrestling. मैं रेसलिंग खेल सकती हूँ। हालांकि कुश्ती लड़ी जाती है, बट इट विल डू। रेणुका जी। रेणुका जी। आई कैन प्ले तंबोला, मैं तंबोला हाँ। खेल सकती हूँ। रोशनी। आई कैन प्ले पिट्टूक, मैं पिट्टूक खेल सकती हूँ। शिवांग। सर आई कैन प्ले BGMI, मैं BGMI खेल सकता हूँ। ये कंप्यूटर गेम है। सर हाँ, कल्पना मैडम। ओके। आई आज कैन मैम भी प्ले। गेम में शामिल हो गई हैं। हाँ, आई कैन प्ले कोर्ट, वो भी ताश में होता है 4 लोगों का। क्या था? आई कैन प्ले स्नेक एंड लैडर। हाँ, सांप सीढ़ी। नम्रता। I can play with utensils. मैं ये बर्तनों के साथ खेल सकती हूँ। अरे बाप रे। गेम खत्म हो गए सब। भी आ नहीं रहा दिमाग पे। हाँ। रेणुका जी। आई कैन प्ले ऊनो। पोलो। मैं पोलो नहीं सर, ऊनो। अच्छा। ऊनो या कार्ड गेम एक। मैं ऊनो खेल सकती हूँ। रोशनी। आई कैन प्ले दहा पकड़, मैं दहा पकड़ खेल सकती हूँ। आई कैन प्ले इट्स कैंडी क्रैश, मैं कैंडी क्रैश खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले रग्बी, जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ये इन गेम के अलावा जो रियल गेम है ना बेटा, उन पे फोकस करो। बल्कि अब तो समय भी काफी ज्यादा हो गया।
8:45 बज गए हैं, अपन विराम देते हैं। सर सोचिएगा। हाँ सर मुझे बोलना है। हाँ। सर आई कैन प्ले राजा मंत्री चोर सिपाही। सभी के अंदर का बच्चे बाहर आ गए। गुड। लेट द चाइल्ड कम आउट। गुड। मैं राजा मंत्री चोर सिपाही खेल सकती हूँ। और किसी का अभी अंदर कुछ सोच के बैठा हो तो बोल दे भाई। आई कैन प्ले कप प्लेट दूध मिलाई। मैं कप प्लेट दूध मिलाई खेल सकता हूँ। ओके। रोशनी तो डिस्कनेक्ट हो गई, वो डेटा की प्रॉब्लम होती है, वी कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए, बाकी जिसके मन में कुछ रह गया हो वो व्हाट्सएप पे लिख के भेजिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर।